all the waves, electromagnetic waves, sound waves, mechanical, transverse waves, longitudinal waves, which is also different kind of waves. So this happens in all Doppler. एक second, sorry, गड़बड़ हो गया, बटन दब गया. 1 second. So Doppler shift is going to cause a change in the frequency. What was transmitted will not be received by the receiver. There has to be some change. This change can be calculated because all the inputs are available. Relative motion है, ft है, relative motion भी पता है, ft भी है, fr भी है, क्योंकि जो रिसीव कर रहे हैं वो भी पता है. So fr के बेसिस पे, ft के बेसिस पे, there has to be certain bit of change in the frequency. But if the receiver is receiving a frequency which is not according to the calculated change, this can happen only because of the receiver movement. Either it is also going towards the satellite or it is going away from the satellite. So this change in the frequency is what is resolved into another motion of the receiver. But as I had told you in the last class, if I go in this direction, I move towards you. If I go here, then also I come towards you. If I go here, then also I come. I components. If I go here, then also I come towards you. So एक से नहीं होता, ऐसे 3 सैटेलाइट से मिनिमम ये स्पीड वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और इन तीनों वेक्टर्स को XYZ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और उन तीनों को रिजॉल्व करने के बाद फाइनल वेक्टर निकलती है, विच इज द मूवमेंट ऑफ द रिसीवर. सो वी गेट नॉट ओनली द स्पीड बट also the direction. Vector is what? How do we define vector, Divya? What is vector? Sir, magnitude with direction. Magnitude and direction. So speed vector अगर निकला है तो उसमें direction भी है, उसमें speed magnitude भी है. So that is what is displayed on the screen of the GPS receiver. The course made good, the speed made good. Along with the GPS fix, the position that we have, उसके साथ साथ ये भी दोनों चीजें आ जाती हैं. So we'll take a look at this. Then we talk about the errors of the GPS. Remember that the GPS is giving you position based on 2 inputs. Gautam, what are the inputs for the GPS receiver for calculating or getting the fix? Gautam? Yes, sir. What are the inputs required for receiver? You are struggling. Ganesh? Yes, sir. What are the inputs required for the receiver for GPS position fix? Sir, confused हो गया sir. Come again? Sir, confused हो गया sir. कंफ्यूज हो गए, क्यों? जीपीएस रिसीवर को पोजीशन फिक्स निकालने के लिए क्या इनपुट चाहिए? शुरू से बात कर रहे हैं, D1 से बात कर रहे हैं जीपीएस में. Distance. Sir, speed, sir, speed. Distance and speed, sir. स्पीड नहीं, डिस्टेंस, रेंज ऑफ द सैटेलाइट एंड Position of the satellite. Range and location, sir. Range and location. ये तो शुरुआत से बात कर रहे हैं, पहले दिन से बात कर रहे हैं कि 3 कम से कम चाहिए, 3 या 4 नोन पोजीशन चाहिए, वहां से रेंज चाहिए, पोजीशन सर्किल बनती है, पोजीशन सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा अपना
पोजीशन फिक्स होता है। तो लोकेशन कैसे मिलती है हमें सैटेलाइट की? जो डेटा ट्रांसमिट करता है नेविगेशन मैसेज, उसमें एल्मनेट, उसमें एफएमएरिस, वहां गड़बड़ हो सकती है। अगर एफएमएरिस गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ रेंज निकलेगा, उसका पोजीशन गड़बड़ निकलेगा। क्लॉक्स के बारे में हमने मालूम कर लिया कि दोनों के बीच टाइम डिफरेंस होता है तो रेंज होती है। अगर यूजर क्लॉक और सैटेलाइट क्लॉक अगर गड़बड़ हुआ तो रेंज का गड़बड़ हो जाएगा। रेंज गड़बड़ तो पोजीशन फिक्स गड़बड़, एफएमएरिस गड़बड़ तो पोजीशन फिक्स गड़बड़। So there are multiple reasons why we can get wrong position of the satellite or why we can get wrong range of the satellite. इसके अलावा कुछ और भी एक दो और errors होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे आज। And then finally we will see how the GPS accuracy can be improved by some additional method. जो हो रहा था सो तो हो रहा था, कुछ और करें क्या कि जिससे और इम्प्रूव हो जाए सिचुएशन हमारी, जो पोजीशन फिक्स है वो और एक्यूरेट हो जाए, क्योंकि एरर्स तो होती है, सम लिमिटेशंस आर देयर जिसके चलते एरर्स होती है, तो उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप लोगों ने ऑगमेंटेशन फायर फाइटिंग कोर्स सुना है? ऑगमेंटेशन कोर्सेस? Yes, sir. क्या होता है विपिन उसमें? ऑगमेंटेशन कोर्स में पूरा कोर्स फिर से करते हैं? नो सर, नो सर, हम लोग वो करते हैं थोड़ा सा एडिशनल कुछ और ऐड कर देते हैं, करेक्ट? एडवांस हम लोग थोड़ा सा उसमें जो आपने सीखा है उसमें थोड़ा सा एडअप कर देते हैं, आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ा देते हैं, करेक्ट? यस सर, यस सर। तो जीपीएस में भी ये होता है ऑगमेंटेशन जीपीएस। जीपीएस जो काम कर रहा था उसको ऑगमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देते हैं, तो वो भी आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट इम्प्रूव किस चीज में? कम अगेन सर इम्प्रूव किस चीज में करेंगे? आपका जीपीएस पोजीशन जो है, मेरा जीपीएस बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ या वहां पे हूँ, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एरर आ गया ना। वो बता रहा है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहां का है, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे। ओके सर। तो उसको और अच्छा बताया, वहां नहीं यहाँ पे, थोड़ा और कम हो गया। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा पोजीशन यहाँ बता रहा है, ऑगमेंटेशन करेंगे तो यहाँ बताएगा और अच्छा हो जाएगा। नजदीक आ गया मैं एक्चुअल डेटम शिफ्ट नहीं रहेगा। कम हो गया? डेटम शिफ्ट कम हो जाएगा सर, ऐसे कुछ नहीं, डेटम शिफ्ट की बात नहीं यहाँ कर रहे हैं। डेटम शिफ्ट तो दो डेटम अलग अलग यूज करते हैं तो होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो हम अभी चार्ट पे तो जा ही नहीं रहे, मैं तो फिजिकल लोकेशन बोल रहा हूँ। अगर चार्ट पे भी बोले तो चार्ट पे मैं एक्चुअली यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरा जीपीएस यहाँ बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तो ये एरर हो गया कि नहीं इतना? यस। मेरा जीपीएस भी WGS84, मेरी चार्ट भी WGS84। मैंने जब रडार फिक्स लिया तो मैं यहाँ पे चार्ट पे देखता हूँ अपने आप को, मेरा जीपीएस बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ। कोस्टल एरिया में क्रॉस वेरिफिकेशन होती है ना पोजीशन फिक्सिंग की, कैप्टन बोलते हैं ना रडार फिक्स लो। यस, बिकॉज रडार फिक्स में हम सामने देख रहे हैं, तो जहां मौका लगता है जीपीएस और हम रडार फिक्स को लेके कंपैरिजन करते हैं कि जीपीएस कितना गलत बता रहा है। तो चार्ट और जीपीएस दोनों का डेटा एक ही है, लेकिन गलत बता रहा है। चार्ट पे मैंने जब रडार फिक्स लिया तो यहाँ पे बताता है मेरे को, मेरा जीपीएस बता रहा है यहाँ पे। जीपीएस प्लॉट करता हूँ तो यहाँ आता है, रडार प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आता है। तो इतना एरर हो गया है या नहीं? दिस इज नॉट डेटम शिफ्ट। इज दिस डेटम शिफ्ट यू आर कंफ्यूजिंग Chevron? नो सर, आई गेट इट। You get it. Okay, good. तो ऑगमेंटेशन जब करते हैं तो जो डिफरेंस आ रहा था रडार फिक्स से यहाँ पे
जीपीएस यहाँ पे बोल रहा है, अगर ऑगमेंटेड जीपीएस होगा तो बताएगा यहाँ, मतलब एरर क्या हो गई, कम हो और इम्प्रूव हो गया हमारा। जहां पे मैं हूं वहीं पे बता रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, इम्प्रूवमेंट हो गई हमारे फिक्स। सर आर्गुमेंटेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। थोड़ा बहुत तो रहता है, हालांकि अब थोड़ा बहुत में अब पिन हेड के बराबर एक्यूरेसी तो नहीं आएगी कि यहाँ पे पिन रखा हुआ है और पिन का हेड जहाँ पे है वहां पे पोजीशन बताएगा ना थोड़ा इधर, मान लो 10 सेंटीमीटर 15 मीटर Yes, sir. 10 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, ऐसे तो डिफरेंस बताएगा ही, है ना। रिमेंबर कि जो जीपीएस बता रहा है वो एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, 5-10 मीटर आप इधर उधर हो सकते हैं जीपीएस। हालांकि दूसरे सिस्टम्स जो हैं जैसे गैलीलियो, दैट गिव्स यू मच बेटर पोजीशन, आप 1 मीटर के भीतर में होते, यहाँ पे है तो यहाँ बताएगा यहाँ, मतलब 1 मीटर से दूर ज्यादा नहीं। So we'll go to the slides, we'll take a look at the speed determination and then we go to the errors of the GPS. Allow me to share the screen. Let me find out the file first. विपिन अपना माइक बंद कर लो। मैं करूं कि किसी और को कह रहे हो? सर सर विपिन को विपिन, हाँ हाँ, okay, all right. Just 1 second. Let me get to that point there. File तो खुल गई। Screen visible to you all? Yes, sir. Okay, good. So these are some review questions for you जो अभी तक आप लोगों ने कर लिया है, इसके बाद स्पीड डिटर्मिनेशन आएगा। तो वेरीफाई कीजिए अपने आप को एक बार फिर से, यू आर ऑल हैप्पी विद दिस। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके you will be better off, you are close to answering all this. Please verify that. Chevron, what is CA Yes, code? sir. CA code, what is CA code? Sir, it is a digital code transmitted in the form of 0 and 1. Very And good. It has a chip length of around 1 microsecond, and it is denoted in meters as 293 meters. Wow, so And it, sweet. yes, sir. And whole code is of 1023 chips. Very good. And generally it is known as pseudo random code. The first line should go that CA code is a pseudo random code which is digital, transmitted at so and so speed. Very good, very good, very good. You have done it. What is the use of this code? What is the use? CA code Timing and ranging purpose. वेरी गुड, टाइमिंग एंड रेंजिंग, सैटेलाइट का रेंज निकालने के लिए। कल बात किया था ना कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला वगैरह जो दिखाया था। तो सीए कोड से जनरेट होता है सैटेलाइट में और इसमें रिसीवर में एक साथ।
और फिर थोड़ी देर के बाद कोड रिसीव होती है तो फेज डिफरेंस जो आता है वगैरह वगैरह. So it is used for timing and ranging purpose. उतना बोल देंगे तो काफी है to calculate the range of the satellites. All right. So speed determination. Just read through the speed determination. We already have done it. So I will not be, blabbering again and again. So just read. अगर कुछ confusion लगती है तो do ask me. कि ये क्या हुआ? ये नहीं समझ में आया. Speed determination. सर ये सैटेलाइट स्पीड लॉग इसी पे वर्क करता है ना? Satellite speed log. ये हाँ हाँ ऐसे ही काम करता है. इसी पे काम करता है. बेसिकली अलग एक डब्बा बना दिया, उसमें यही सब प्रोसेस होती है. जीपीएस में पहले से हो रहा है, वहां पे अलग से बना दिया, उसका स्पीड लॉग बोल दिया, सैटेलाइट स्पीड लॉग. सो डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट. नेक्स्ट. ओके यस, स्लाइड 66. What you are reading should convert into an image in your mind. If it is creating a picture in your mind, that means you are understanding. If it is not creating a picture, that means you are not understanding. So check it out that it creates an image in your mind. ठीक है. नेक्स्ट. Are we good here? जवाब नहीं आया. बताओगे भाई, ठीक है या नहीं? यस सर. Yes, sir. थके थके क्यों बोल रहे हो? नेक्स्ट. Yes, sir. The satellite movement can be resolved into two components. As we had said yesterday, that the satellite is moving in the sky at given point of time, it is moving at the speed of v. So this can be described in two components. Number one, this one, and number two, this, which is perpendicular to the first one. Same way it was happening in Doppler log.
Next, 69, slide 69. ये वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स द रिसीवर क्या है? V cos alpha. Very good, V cos alpha. Very good. Next. आपको कहीं V cos alpha लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख देंगे टेक्स्ट में, उतना काफी है. But your understanding should be clear कि what is we are writing. सर इसका फर्स्ट पॉइंट थोड़ा समझा दिए. ऊपर वाला यस सर. if the relative approach speed between the satellite and the user is not equal to satellite speed vector towards the user, what it is saying that the satellite is moving in this orbit at a given point, it is at this location, moving in this direction. Now that we know the position here of the receiver, क्योंकि इसका XY तो निकल गया, हमारा पोजीशन फिक्स ले लिया हमने XYZ, जो ये वेक्टर निकाल रहा है V cos alpha, it should be available from the FR and FT. FT is L1, which is transmitted by the satellite. FR is the frequency received by this. On the basis of this, अगर V cos alpha match नहीं कर रहा है इसके साथ, तो it can only be because the satellite, the user is also moving like this and this, either towards the satellite or away from the satellite. जो V cos alpha निकला था, उसकी वैल्यू नहीं मैच कर रही है. FR FT से जो V cos alpha की रिलेटिव मोशन की वैल्यू निकली है, वो मैच नहीं कर रहा है V cos alpha से. That means V cos alpha में कुछ ऐड कर दिया गया या सब्ट्रैक्ट कर दिया गया बाय द यूजर, तभी तो वो नहीं मैच कर रहा ना. यस. उसी को प्लस माइनस करते हैं, उसी का वेक्टर निकलता है, उसी को रिजॉल्व करते हैं XYZ में, और तीन सैटेलाइट्स को मिला करके एक फाइनल वेक्टर निकलता है. नाउ रीड अगेन, इज इट क्लियर? यस सर. कि फिर से एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आगे. ओके. रिमेंबर, ये हमने देखा था क्या, FR इज इक्वल टू FT इंटू C प्लस B बाय C माइनस B, करेक्ट? तो रिलेटिव वेक्टर तो ये वाला है V, रिलेटिव मोशन. C इज द स्पीड ऑफ लाइट. FT इज ट्रांसमिटेड विच इज L1. FR जो हम रिसीव कर रहे हैं. इन सब के बेसिस पे, if it is not matching with only the satellite speed, it is because the receiver is adding to the motion, either going towards or away. उससे मोशन पता चल जाता है रिसीवर का. Depending on the frequency change. Depending on the frequency change. Very good. सर बट वो आपने बताया था कि रिसीव फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा, वो क्या था? बेसिकली सब एक ही साथ रिलेटेड है, सब उसी से रिलेटेड है
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट में कि स्पीड वेक्टर मैच नहीं कर रहा, स्पीड वेक्टर कुछ कम या ज्यादा हो रहा है, तो वो सैटेलाइट यूजर के मूवमेंट के चलते है, वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी उसी के चलते हो रहा है ना, एक्स्ट्रा ऊपर या नीचे जो हो रहा है। There will be more frequency shift because of user movement or less. Correct? नहीं समझ में आया? No, sir. We had said कि L1 चली है, यहाँ पे L1 प्लस होना चाहिए था, कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी आना चाहिए था, लेकिन L1 प्लस ना आकर के L1 माइनस आ रहा है। तो ये चेंज क्यों हुई? बिकॉज द रिसीवर इज मूविंग हेयर और हेयर। It is adding to the relative motion or not adding or subtracting to the relative motion. That is what is going to cause change in this frequency received. Yes, sir. So that is what we are saying, it is interrelated. User ka movement is going to change the frequency shift. Frequency shift change hai, so that we can detect the user movement how much. Understood? Concept wise. Yes, sir. कहानी के रूप में तो समझ में आ रहा है। हम लोग मैथमेटिक्स के इसमें नहीं जा रहे हैं, बट जनरल आइडिया के तौर पे कि व्हाट इज हैपनिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्योरी की हो क्या रहा है। Yes, sir. ठीक है? सो नेक्स्ट, सर इसमें यही बोल रहा है ना, 2 सैटेलाइट कैलकुलेट कर रहा है सर डिस्टेंस। 3 सैटेलाइट मिला करके हो रहा है बात। हाँ 3। Like it says, similarly with the help of other two. Other two मतलब एक तो हो चुका, ऐसा 2 और। सर रिसीवर एंड पर क्लॉक एरर कैसे अमेंड करेगा? क्लॉक एरर कैसे अमेंड कैसे करेगा सर रिसीवर एंड? नेविगेशन मैसेज आती है ना, नेविगेशन मैसेज में फर्स्ट सब फ्रेम में क्या है? फर्स्ट सब फ्रेम clock correction signals, second and third ephemeris of the satellite, fourth one alphanumeric data, if not alphanumeric data then almanac of standby satellites, subframe 5 almanac of active satellites, 24 satellites. Remember? तो सर वो ऑटो अपडेट हो जाएगा या मैनुअली करना पड़ेगा? नहीं, मैनुअली आपने आज तक किया है क्या? किसी ने जहाज में देखा है करते हुए किसी को जीपीएस में कुछ करते हुए? No, sir. Never, sir. बस आप तो ज्यादा वही से पूछ रहा ज्यादा था ना सर, ये तो क्लॉक एरर भी तो सर पहली बार ही सुना है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सब तो सीखते ही है ना। तो जीपीएस में हम जो करते हैं वो क्रॉस ट्रैक एरर्स वगैरह की अलार्म सेट करते हैं, कितना दूर जाएगा तब बताना, उतना दूर जाएगा तब बताना, वे पॉइंट्स डालते हैं, ये सब करते हैं हम। उसके अलावा उसके फंक्शनिंग में हम कुछ नहीं करते यार। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम जरूर इनपुट्स डालते हैं उसमें, जो कि रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। हमने वे पॉइंट्स डाल दिए जीपीएस में, तो उससे सर कोर्स हमें भी पता निकल कैसे चलेगा कि सर वो सिंक हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं चलेगा, लेकिन जीपीएस अपना सेल्फ असेसमेंट करता चलता है और अपनी एक्यूरेसी लेवल को वो चेक करता रहता है कि मैं ठीक हूं या नहीं।
अगर वो ठीक है तो वो चुपचाप रहता है, आपको ये बोलता है कि ठीक है चलते रहो सब ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो एक अलार्म बजेगा कि मेरे से ना हो रहा, अब तुम संभालो अपना। If there is more than accepted error, then there will be an alarm. जो एक्यूरेसी लेवल है जीपीएस का, उसकी एक्यूरेसी लेवल भी डिस्प्ले होती है। That means how much of plus minus, what is the accuracy level of the GPS fix is also displayed onto the screen. If this goes beyond a limit, then there will be an alarm in the system. 2222 आवाज करने लगेगा, and you will know that my GPS is not giving the right position as expected. So I have to now take command of situation myself. सर मतलब Understood? कितना एरर आने पे होगा ये? वो उसकी वैल्यूज होती हैं, एचडीओपी वगैरह का भी वैल्यू होता है। अभी एरर्स जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और एचडीओपी हम कैसे चेक कर सकते हैं सर ये एक्यूरेसी? कहाँ पे मिलेगा सर ये? ये तो आप मैनुअल में पढ़ो, उसमें एक्यूरेसी लेवल चेक करने के लिए उसमें प्रोसेस होंगी, फॉलो कीजिए उनके स्टेप्स को जैसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल में है। बटन वटन दबाएंगे इधर उधर तो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल। मतलब हर टाइप का अलग होगा ना सर? हर टाइप का बेसिकली दो टाइप के आएंगे, एक तो जनरल लैट लॉन्ग का एरर कितना है, और एक समथिंग कॉल्ड एचडीओपी और पीडीओपी जो कि अभी हम पढ़ेंगे, डाइल्यूशन ऑफ प्रिसिशन। थैंक यू सर। यस, अभी देखेंगे एरर्स में आएंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डाइल्यूशन ऑफ प्रिसिशन और कहां तक एक्सेप्टेड है, उसके बाद गड़बड़ होने के बाद अलार्म कब आती है। ठीक है, थैंक यू सर, अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए सर। okay, no problem. Speed determination. So final slide. सर ये एक्स वाई एंड जेड जो कंपोनेंट है ये एक्चुअली अपना लैट लॉन्ग और एल्टीट्यूड रहता है ना? Exactly. जेड जो है वो एल्टीट्यूड एज पर सी लेवल ही रहता है। हाँ, इस केस में हम मान के चल सकते हैं एक्स वाई जेड मतलब थ्री कोऑर्डिनेट डायमेंशन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है ना। हाँ सर। तो ये वही तीन चीज है। अच्छा रुको, ये तो हो गया, एक बार देख लेते हैं, रुको, लेट मी एग्जिट फ्रॉम हियर। Just 1 second, let me find out at the top. Okay, let us think this is the box. If this is the starting point, यहाँ से, और एक लाइन है जो तिरछा चल रही है और यहाँ पे निकल रही है, तो ये लाइन यहाँ से सीधा जाकर के इधर को निकल रहा है कि नहीं, तिरछा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। सर ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स मैं अभी बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन इमेजिन करो, डायगोनल ऑपोजिट एंड्स, यहाँ से शुरुआत एक लाइन और यहाँ पे खत्म, पीछे वाले से शुरू सामने वाले से खत्म ऊपर में। ठीक है, यस सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हैज इट गॉन अप बाय दिस मच? हाँ सर। फ्रॉम दिस पॉइंट हैज इट गॉन इन दिस डायरेक्शन बाय दिस मच? यस सर। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। Also this one to this point, has it also come forward by this much? यहाँ से इस तरफ से इधर को आया, तो has it also gone one component like this?
हाँ सर। तो इस पॉइंट का 3 कंपोनेंट है, x, y एंड z। नहीं समझ में आया? ये तो अपने कंपोनेंट है ना आ सर, गया एक्स वाई सर। जेड। ओके, अगर नहीं तो एक बार और देख ले सकते हैं हम लोग। जस्ट 1 सेकेंड। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे x का जो है उसका जो एक्सिस लिया गया है, मतलब जो 0 पॉइंट है, एक तरीके से लैटिट्यूड का 0 पॉइंट अपन ने उससे ले लिया अपनी इक्वेटर से, ना, लॉन्गिट्यूड का 0 0 पॉइंट। पॉइंट रिसीवर का है, यहां से रिसीवर चल के इधर को गया, यहां से यहां को गया, तो ये इसका मूवमेंट है। दिस इज ब्रोकन इनटू 1 कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट। इफ द मूवमेंट इज लाइक दिस, अगर यहां से चल के इधर को जा रहा है, this is the motion of the motion vector. So is this described in one component here, other component here, and third component here? X, Yes, sir. Y, and Z. नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में आया? हाँ ना, बोलो कुछ, तो मैं कुछ। नहीं सर, नहीं आया नहीं सर। सर। ओके ठीक है, होल्ड करो। सपोज दिस इज द मोशन वेक्टर, रिसीवर यहां से चल के इस तरफ को गया है, तो इज दिस अ वेक्टर? Yes, sir. Can this be resolved into 3 components like this? One component, the height, has it gone this much above from this point to this point? Has it gone this much above? Yes, sir. In this direction, has it gone by this much? यहां से यहां के बीच में इतना इधर को गया, हाँ सर। and it has also gone in this direction this much. So XYZ is basically the 3 ends of a box. एक ये और एक ये, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। इसमें from this point to this point, is it this much high? ये वाला कंपोनेंट यहां से यहां के बीच में इतना हाइट है या नहीं? हाँ सर। यहां से यहां के बीच में इतना ये मूवमेंट है या नहीं? इस पॉइंट से इस पॉइंट में इतना आया है या नहीं? Yes, sir. एंड इसमें यहां से यहां इतना आया है या नहीं, इस पॉइंट के बीच में? Yes, sir. हाँ सर। तो इतना हाइट, इतना x और इतना y. So a vector is resolved into 3 components or not? Yes sir. Understood or not? Yes sir.
If we compare this end and this end इतना ऊपर गया, इतना इधर को गया, राइट सर, एंड इतना इधर को गया. सर जैसे कभी कभी ग्राफ में दिखाता है ना XYZ ग्राफ में. एग्जैक्टली वही तो है ना, वही Yes, चीज sir. तो है. अगर हम प्लेन में देखें सर लैट तो लॉन्ग इस- का तो समझ आ गया, अगर अगर सिर्फ XY में altitude का- देखें, एक सेकंड, अगर XY में देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इसको हम लोग दो में रिजॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, इतना इधर इतना इधर. यस सर. यस सर, अगर ये मूवमेंट ऐसे होती तो इतना इधर और इतना इधर, यहां से यहां इतना और यहां से यहां सिर्फ इतना. सर ये 2 कंपोनेंट के लिए है ना. एग्जैक्टली ये दो कंपोनेंट में बता रहा हूं. लेकिन अगर इसके साथ ये इधर को भी गया, इधर को भी गया, तो ये वाला भी कंपोनेंट बताना पड़ेगा कि नहीं थर्ड डायमेंशन में. यहां से इतना ऊपर गया, यहां से इतना ऊपर, तो ये वाला कंपोनेंट. यहां से इतनी दूर, ये वाला कंपोनेंट. अगर ये आपकी तरफ भी चला गया तो ये वाला भी बताना होगा कि नहीं कि ये इधर आपकी तरफ कितनी दूर गया. यस सर. सो जैसे ग्राफ में हम लोग देखते हैं सॉलिड, इसमें ये वैसा ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड पे जाएं, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, अगर हमने एक कंपोनेंट को लिया ऐसे, इसमें एक वेक्टर लिया, तो इतना ऊपर इतना नीचे और इसके बराबर इतना, ये थोड़ा सा इसमें बताना मुश्किल होगा 3 डायमेंशन में. चलो ऐसे ऐसे बताते हैं. लेट अस वर्क इट लाइक दिस. Can you see the 3 dimensions? This, Yes. this, Yes, sir. and this. अगर मेरा एक वेक्टर है बीच में ऐसे, अगर वेक्टर है ऐसे, ऐसा, तो can I say that it is so much here in this direction? This point, is it away from here by this much? आना बोलोगे कुछ? Yes, sir. यस सर. Is it high this much? This point is also this much high? हाँ सर. And is it away from the board by this much? That means this much. यहाँ पे इतना दूर, ये इधर को भी आया हुआ है ना. हाँ सर. तो यहाँ से x, y and z 3 कंपोनेंट में हो गया या नहीं एक वेक्टर? हाँ सर. आ रहा है समझ में कुछ या नहीं आ रहा है? सर ये कंपोनेंट समझ में आ गया. सर ये Component. 3 कंपोनेंट जो है ये बॉडी के मतलब 3 एंड्स हैं, तो ये जो हाँ। वेक्टर है ये बॉडी के कहीं सेंटर पे एक्ट कर रहा है. वेक्टर ऐसा है, देखो मैं इधर को चल रहा हूं, मैं इधर को जा रहा हूं, तो यहां से मेरा वेक्टर ये हो गया या नहीं? यस सर. तो मैं जब इधर को जा रहा हूं तो आपकी तरफ गया कि नहीं? कितना आपकी तरफ चला? मेरे 1 मीटर इधर जाने में मैं आपकी तरफ आधा मीटर जा रहा हूं कि नहीं? यस सर. लेकिन जो यहाँ पे खड़ा था मैं उसकी तरफ भी गया कि नहीं? एक आपकी तरफ और आपसे यहाँ से परपेंडिकुलर में मैं बीच में जा रहा हूं, तो इधर भी बढ़ रहा हूँ उधर भी बढ़ रहा हूँ या नहीं? यस सर. और अगर ऊपर जाऊं तो छत की तरफ भी बढ़ रहा हूँ या नहीं? मैं उधर जा रहा हूँ ऐसे, यहाँ से यस सर.
आपकी तरफ भी बढ़ा, उधर भी बढ़ा और छत की तरफ भी बढ़ा। तो ये मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस एंड दिस 3 वेक्टर्स, आई मीन 3 कंपोनेंट्स। तो मतलब ये वेक्टर उस बॉडी का मूवमेंट ही है। जो बॉडी का एक मूवमेंट है उसको हम 3 टुकड़े में बांट करके देख रहे हैं, इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेक्टर समझाना पड़ गया तुम लोग को। सर एक बार वेक्टर से अच्छे से समझा दो। है एक बार सर वेक्टर थोड़ा अच्छे से समझा दो। इसको मैं अकेले नहीं कर सकता।